Hello students, the next chapter that we shall start is integral as a function of parameter, right? तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, एक फंक्शन होगा जो इंटीग्रल के अंदर होगा, दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स कॉमा अल्फा जी एक्स डी एक्स। ये जो फर्स्ट फंक्शन होगा इट विल बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड अल्फा, और जी जो होगा ये विल होगा फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल ओनली। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ओवर एक्स और वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये हमारा जो फंक्शन बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ अल्फा में बचेगा। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन इट एज ए फंक्शन ऑफ अल्फा, दैट इज सपोज एफ ऑफ अल्फा, राइट। हम इसके लिए थ्योरम करेंगे कि कब इस तरह का फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। डेरिवेबिलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ एन इंटेग्रल, हाँ जी, इसकी डेरिवेबिलिटी की बात हम करेंगे। तो कैसे है कि अगर एफ ऑफ एक्स अल्फा और कर्ल बाय कर्ल अल्फा ऑफ एफ एक्स अल्फा, these two functions both are functions of x and alpha, these two functions are continuous, a less than x less than or equal to b and alpha less than or equal to lambda 2 to lambda 1। अगर इस रीजन पे ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूज हुए और जो हमारा gx है वो बाउंडेड और इंटीग्रेबल हुआ, ठीक है, ये दोनों चीजें हमने चेक करनी है, देन द फंक्शन एफ ऑफ अल्फा इज डिफरेंशिएबल और लैम्डा 1 लेस देन और इक्वल टू अल्फा लेस देन और इक्वल टू लैम्डा 2। तो इसमें ये डिफरेंशिएबल होगा। एंड हाउ इज डेरिवेटिव गिवन, एफ डैश अल्फा इज गिवन बाय इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी कर्ल बाय कर्ल अल्फा ऑफ एफ एक्स अल्फा इंटू जी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, right? So this is the theorem that we shall use in the examples, right? Hanji, so what is example number 1? It says show that integration from 0 to pi log of 1 plus cos alpha sin x upon sin x dx, that is equal to pi square minus 4 alpha square upon 4 for all alpha in between minus pi to pi, राइट। हमने ये शो करना है कि ये जो इंटेग्रल है इस इंटेग्रल की वैल्यू ये है, राइट। सो नाउ because this is a function, this is integration over x and it is a function of x and alpha, so this is going to be a function of alpha only, 0 to pi log of 1 plus cos alpha sin x into 1 over sin x dx. So you can write it, see it as f of x alpha and you can see it as gx, ठीक है। सो वही फॉर्म हो गई एफ ऑफ अल्फा जो हमने पीछे की है थ्योरम में, एफ ऑफ एक्स अल्फा इंटू जी एक्स, ठीक है। सो यू कैन चेक दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फ्रॉम 0 to pi and gx is bounded and integrable function, right? So by that theorem f dash alpha exists from minus pi to pi, right? And what is the derivative of this? By that theorem derivative is given by, derivative is given by f dash alpha is given by integration from 0 to pi curl by curl alpha of fx alpha. What is fx alpha? Log of 1 plus cos alpha into sin x into 1 over sin x dx, right? Now what is this? Integration from 0 to pi 1 over 1 plus cos alpha into sin x, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन एक्स 1 over sin x dx, right? By that theorem sin x cancel, so what is this equal to? Integration from 0 to pi minus sin alpha upon 1 plus cos alpha sin x dx, right? Now you know that 0 to pi fx dx, this is 2 times 0 to pi by 2 fx dx if f of pi plus x is same as f at x, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी यूज करके हम इसको क्या लिख सकते हैं,
minus 2 times 0 to pi by 2 sin alpha 1 plus cos alpha sin x dx, right? Now this is equal to minus 2 times 0 to pi by 2 sin alpha 1 plus cos alpha. Sin 2 theta is same as 2 sin theta cos theta. So this is 2 sin x by 2 cos x by 2 dx, right? Now you divide numerator and denominator by cos स्क्वायर x by 2. अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, -2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi by 2. न्यूमरेटर को जब इसे डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर x by 2. इसको जब डिवाइड करेंगे 1 के साथ तो ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर x by 2 प्लस 2 टाइम्स cos square cos alpha 2 times cos alpha sin over cos, that is tan x by 2. ये बच जाएगा, right? Now you put tan x by 2 equal to t, so that secant square x by 2 1 by 2 dx will be dt, right? So ये बन जाएगा हमारा. अब देखिए इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स है वो क्या बन जाएंगी, when x is 0 t is 0, when x is pi by 2 tan pi by 4 is 1, so t is 1, so 0 to 1 बन जाएंगी लिमिट्स. साइन अल्फा ये क्या बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर x by 2 dx, ये बन जाएगा 2 टाइम्स dt. यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 प्लस दिस इज सीकेंड स्क्वायर x by 2, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2. 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 मीन्स 1 प्लस t स्क्वायर, 1 प्लस t स्क्वायर प्लस 2 cos अल्फा टाइम्स t, राइट? अब हम नीचे का जो स्क्वायर है वो कंप्लीट कर लेते हैं. नाउ व्हाट इज दिस इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू -2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi by 2, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi by 2, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi by 2, सो इट विल बी फ्रॉम 0 to 1, ये बन जाएगा आपका साइन अल्फा डी टी 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t cos अल्फा. अब क्योंकि हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, स्क्वायर कंप्लीट कैसे करेंगे इसका, we add square of half of coefficient of t. What is half of coefficient of t? It is cos alpha. Cos alpha का square, cos square alpha minus 2 times 0 to 1 sin alpha dt upon 1 plus t square plus 2t cos alpha plus cos square alpha minus cos square alpha, ये बन जाएगा. So minus 2t 0 to 1 sin alpha dt upon, ये क्या बन जाएगा, ये तीनों मिला के क्या बन जाएगा, t प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इज साइन स्क्वायर अल्फा, राइट? तो ये जो साइन अल्फा ये आगे ले लेते हैं हम 0 to 1 डी टी अपॉन टी प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा. नाउ यू नो व्हाट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम द व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इट इज 1 over a tan इनवर्स x अपॉन e. सो ये बन जाएगा -2 साइन अल्फा ये बन जाएगा tan इनवर्स, so 1 over a means 1 over sin alpha tan inverse x upon a t plus cos alpha upon sin alpha, ठीक है? इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to 1, तो ये बन जाएगा -2 टाइम्स साइन अल्फा कैंसल, tan इनवर्स t प्लस cos alpha upon sin alpha, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to 1 -2. हाँ जी, ये बन जाएगा tan इनवर्स, ये बन जाएगा 1 प्लस cos alpha upon sin alpha. जब हम 1 पुट करेंगे माइनस tan इनवर्स cos अल्फा अपॉन sin अल्फा इज cot अल्फा, ठीक है? तो ये बन जाएगा -2 टाइम्स, सॉरी -4 चल रहा था ना साथ में, -4 स्टार्टिंग से -4 ही है. सो दैट इज tan inverse, what is 1 plus cos alpha? It is 2 cos square alpha by 2, it is 2 sin alpha by 2 cos alpha by 2 minus tan inverse, you can write it as tan of alpha plus pi by 2, ठीक है? सो सॉरी pi by 2 minus alpha, क्योंकि ये तो फिर साइन भी चेंज हो जाएगा ना, pi by 2 minus alpha.
सो ये क्या बन जाएगा -4 टाइम्स tan इनवर्स. व्हाट इज दिस? cos cos cancel, 2 cancel, cos alpha upon sin alpha, cotangent alpha by 2, right? Minus tan inverse tan of pi by 2 minus alpha. इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज tan of pi by 2 minus alpha by 2. ठीक है, tan tan कैंसिल, तो ये बन जाएगा, इसको सॉल्व करके आ जाएगा सारा -2 alpha. Right? So what is f dash alpha equal to? F dash alpha is equal to -2 alpha. Right? ये आया है f dash alpha की वैल्यू. So यहाँ से f of alpha क्या आएगा? Integrating both sides, f dash alpha d alpha will be integration -2 alpha plus c. What is this? ये बन जाएगा f of alpha और ये बन जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस c. ठीक है, सो इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये कैसे निकलेगा? अब हमारा जो f of alpha है वो इंटेग्रल फॉर्म में क्या है? What is f of alpha? It is integration from 0 to pi log of 1 plus cos alpha sin x upon sin x dx. ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें, अगर what is f of pi by 2? अगर हम cos pi by 2 देखें तो ये 0 बन जाएगा. log of 1 plus 0, log of 1 is 0, so this whole function will be 0. ठीक है, 0 का इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है? 0 के. तो f of pi by 2 जो है वो क्या है? 0 के बराबर. सो यूजिंग दिस वैल्यू वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ c. तो यहाँ पे पुट करते हैं. व्हाट इज f of pi by 2 फ्रॉम हियर? इट इज माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस c विच इज इक्वल टू 0. सो c की वैल्यू क्या आ गई? पाई स्क्वायर बाई 4. पुट दिस वैल्यू ऑफ c देयर. व्हाट डू यू गेट? f of alpha is minus alpha square plus pi square by 4. So which is nothing but pi square minus 4 alpha square by 4. This is what you have to prove, right? जी. Next example number 2. It says show that integration from 0 to 1 x alpha minus 1 upon log x dx that is equal to log of 1 plus alpha. इसके बराबर हमने प्रूव करना है इसको. ठीक है, तो ये कैसे करेंगे? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2. शो डैट इंटेग्रल ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस अल्फा. तो सेम प्रोसेस है. दिस इज एफ ऑफ एक्स अल्फा, दिस इज 1 over log x is gx. So you take it as f of alpha 0 to 1 x alpha minus 1 over log x dx, right? So what is this? This is your f of x alpha, and what is this? This is your gx. ठीक है, so by that theorem what do you get? F dash alpha is given by integration from 0 to 1 curl by curl alpha of this, which is x alpha times log x 1 over log x dx, right? So log x cancel. What is this equal to? Integration from 0 to 1 x alpha dx. Now what is this equal to? With respect to x हमने इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये क्या बन जाएगा? x रेज टू अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस 1. इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to 1. तो जब हम लिमिट्स पुट करेंगे क्या बन जाएगा? 1 over अल्फा प्लस 1 माइनस 0 विच इज सेम एज 1 over अल्फा प्लस 1. सो हमारा जो f डैश अल्फा है वो किसके बराबर आया है? 1 over अल्फा प्लस 1 की. नाउ यू इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू अल्फा. What is this? 1 over alpha plus 1 d alpha. So this is f of alpha. ये क्या बन जाएगा? log of 1 plus alpha plus c, right? So अब हमने c की वैल्यू निकालनी है. तो c की वैल्यू कैसे निकलेगी? हमने अल्फा की वो वैल्यू इसमें पुट करनी है जिस वैल्यू को पुट करने के बाद ये इंटीग्रेशन इजीली निकल आए. तो मतलब अल्फा ख़त्म ही हो जाए. तो हमें पता है f at 0 क्या होगा. अगर हम अल्फा को 0 रखेंगे तो ये x रेज टू अल्फा खत्म हो जाएगा. सो ये क्या बन जाएगा? व्हाट इज f at 0? x रेज टू 0 minus 1 which is 1 minus 1. 0 upon log x that is 0. So 0 रेज टू 1 0 dx. ये क्या बन जाएगा? 0 का इंटीग्रेशन हमें पता है किसके बराबर होता है? 0 के बराबर. सो f at 0 is 0. नाउ फ्रॉम हियर what do you know? f at 0 is log of 1 plus c. ठीक है, ये है 0 के बराबर. सो c इज इक्वल टू 0 फ्रॉम हियर. पुट दिस वैल्यू ऑफ c हियर. व्हाट डू यू गेट?
f of alpha will be equal to log of